Hello dear student, today I will start measurement and motion. Measurement plays an important role in our life. We often talk about things like what is the length of this room, how much time will be taken by us to go to school, how much sugar is required for preparing halwa, how do we get to know how far Delhi is from Mumbai, how much coke is there in a bottle, how heavy a cartoon is. We get to know all this by a process called measurement. We need to make measurement to find out how long, what wide, how heavy, and so on things are. It means that measurements are necessary to know the answers to such questions. अब है कि मेजरमेंट तो ज़रूरी है लेकिन एक प्रॉपर मेजरमेंट्स आर वेरी important in our day-to-day life. We cannot manage things just by guessing about different quantities. For example, suppose a girl, Mala, tailor wants 1 meter of cloth for her dress. एक लड़की है माला, उसको अपने ड्रेस के लिए टेलर जो है वो क्या बोलता है कि 1 मीटर क्लॉथ जरूरी है. If the shopkeeper gives the cloth just by guess, it may turn out to be less or more than the tailor requirement. टेलर को जितना रिक्वायरमेंट है, अगर शॉपकीपर ने बाय गेस के अनुसार दे दिया कि ये हो गया 1 मीटर, तो यहाँ पे क्या होगा कि आइदर लेस और मोर क्लॉथ माला के पास हो गया. In the first case, the dress would not get made, and in the second case, there would be wastage of cloth. अगर कम कपड़ा दे दिया दर्जी टेलर तो क्या होगा, उसका कपड़ा, उसका ड्रेस तैयार नहीं होगा. या अगर ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ क्लॉथ. नन ऑफ दिस इज डिजरेबल. Hence the shopkeeper correctly measures 1 meter of cloth and gives it to Mala. तो इस दोनों कंडीशंस को हटाने के लिए शॉपकीपर को क्या होगा, करेक्टली मेजर्स 1 मीटर ऑफ क्लॉथ. We can think of many more suitable examples from our daily life that tell us what we cannot do without proper measurements of different physical quantity. ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हमारे सामने आएंगे और देखेंगे कि मेजरमेंट जो है वो ज़रूरी है.
physical quantity. You might have measured the length of the line segment. Line segment, the time during the day, the weight of vegetables brought from a vegetable seller, the temperature during the day to see how hot or cold it is, the speed of the car we are traveling in it, in etc. So quantities like length, weight, time, temperature and speed that can be measured are known as physical quantity. तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गया? क्वांटिटीज लाइक लेंथ, वेट, टाइम, टेम्परेचर एंड स्पीड that can be measured are known as physical quantities. What is measurement? Suppose we are asked to find the length of given table. अगर एक टेबल का हमें लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे? In the absence of any instrument, we may decide to use the span of our hand for this purpose. We carry out the measurement and may come up with the answer that the length of the table of the given table is 6 hand span. मान लो तुम अपने घर में किसी चीज को नाप रहे हो and there are no instrument. How can you measure? तो you measure by hand span. मान लो किसी टेबल को तुमने नापा तो वो कितना आया? 6 hand span. A close look at this measurement reveals that we have used two things to express it. यहाँ पे हम लोगों ने जो एक टेबल को नापा वहाँ देख रहे हैं कि टू थिंग्स हम लोग यूज किए. वी हैव यूज्ड ए नंबर यानी 6 एंड फिक्स्ड नोन क्वांटिटी हैंड स्पेन. एनीबडी आस्क यू व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस टेबल, तो तुमने क्या कहा? 6 hand span. 6 hand span. यहाँ तुमने दो चीज यूज किया है, एक 6 जो नंबर है और एक हैंड स्पेन. द लेटर इट इज कॉल्ड द यूनिट. यानी हैंड स्पेन जो हुआ ये क्या हुआ? एक फिक्स्ड हुआ, तो इसको हम लोगों ने कहा यूनिट. And the number tell us as to how many times does our unit get content in the length to be measured. तो यहाँ पे 6 जो है, 6 नंबर जो है वो क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइम्स डज आवर यूनिट यानी हैंड स्पेन गेट कनेक्टेड इन द लेंथ टू बी मेजर्ड. हमने कितनी बार हैंड स्पेन को यूज किया? तो कितनी बार किया? तो 6 टाइम. हम लोग बोल सकते हैं कि इस टेबल का लेंथ 6 हैंड स्पेन है, तो 6 हो गया यहाँ नंबर, एंड जो फिक्स्ड क्वांटिटी है हैंड स्पेन दैट इज कॉल्ड यूनिट. We thus realize that measurement is basically a process of comparison
of some unknown quantity. We thus realize that measurement is basically a process of comparison of some unknown quantity with some known fixed quantity यानी यूनिट. मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कंपैरिजन करते हैं ऑफ सम अननोन क्वांटिटी. तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो अननोन क्वांटिटी वहाँ क्या हो गया, मान लो कि अननोन क्वांटिटी हो गया तुम्हारा लेंथ ऑफ द टेबल, एंड हैंड स्पेन क्या हो गया, एक यूनिट. हैंड स्पेन क्या हुआ, यूनिट हुआ. तो ये सम, तो मेजरमेंट इज बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ सम अननोन क्वांटिटी with some known fixed quantity. We need both the measurement, we need both the number as well as the unit to express the measurement in a proper and complete way. जब तक हम लोग इस दोनों का यूज नहीं करेंगे, किसका, यूनिट एंड नंबर, यूनिट एंड नंबर, तब तक हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते. अब मान लो एक एक्टिविटी ले लो. Ask the student to measure the width of the classroom, desk, study table using the hand span as a unit. तुम्हारे घर में मान लो 3-4 मेंबर हैं, माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, और भी जो मेंबर हैं. तो तुम एक टेबल को या किसी भी चीज को मेजर करो. The results may be summarized in the form of a table or anything. तो पहला सीरियल नंबर में पहला है नेम ऑफ द स्टूडेंट. स्टूडेंट आर नॉट प्रेजेंट इन दैट पीरियड, दैट इज वाई यू यूज योर ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर. तो फर्स्ट ऑफ द राइट द नेम ऑफ द रिलेटिव्स and other width of desk or study table in term of child hand span. तो तुम सभी लोगों को बोलो कि अपने हैंड स्पेन से उसका कैलकुलेट, उसका मेजरमेंट करें. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द एबव एक्टिविटी. अब सबको हम लिख लेंगे. तो देखते हैं द रिजल्ट for the length of the same desk or table or anything as reported by parents or the relative is not quite the same. जितने लोगों से तुमने कहा कि ये टेबल या ये कोई भी चीज़ है घर में नापने का, उसको नापिए हैंड स्पेन से, तो देखोगे कि डिफरेंट पर्सन, तुम्हारे मम्मी का अलग आएगा, तुम्हारे पापा का अलग आएगा, तुम्हारा अलग आएगा, तुम्हारी सिस्टर का अलग आएगा, तुम्हारी बहन का, तुम्हारे भाई का अलग आएगा. कैन वी गेस द रीजन्स फॉर दिस डिफरेंस. अब तुम उस डिफरेंस क्यों आया, वाई. द लेंथ ऑफ वन हैंड स्पेन मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर. मान लो तुम्हारा हैंड स्पेन कुछ है, तुम्हारे मम्मी पापा का तुमसे ज़्यादा है, तुम्हारे छोटे भाई बहनों का कम है. तो द लेंथ ऑफ वन हैंड स्पेन, मान लो तुम्हारा मे बी डिफरेंट, वो दूसरा हो सकता है, अलग हो सकता है अदर रिलेटिव से. इन द सेम वे द लेंथ ऑफ ए फ्लोर मेजर्ड बाय डिफरेंट चिल्ड्रन या डिफरेंट relative
in terms of their food step will not quite be the same. या तो हैंड स्पेन से नापो या फूड स्टेप से कितने स्टेप तुमने चला, तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. In such cases, which of the measurement results should then be accepted as correct one? Here, there is no clear choice. या तो तुम फुट स्पेन यूज करो, फुट यूज करो, फुट स्टेप या हैंड स्पेन. यहाँ पे तुमको कोई क्लियर उसका एक्यूरेट लेंथ नहीं पता होगा, चूँकि डिफरेंट उसका डिफरेंट रिलेटिव डिफरेंट स्टूडेंट का अलग अलग आएगा. अब इसको दूर करने के लिए we can avoid this type of situation only if we have a unit that is same for measurement done by one and all. तो ऐसे सिचुएशन को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक यूनिट चाहिए जो सभी को एक्सेप्टेड हो. सेम फॉर मेजरमेंट डन बाय वन एंड ऑल. Such an agreed and internationally accepted unit of a given physical quantity is known as the standard unit for that physical quantity. The standard unit for three basic physical quantity, length, time and mass, are as follows. Standard unit of length, meter. Standard unit of time, second. Standard unit of mass, किलोग्राम. तो ये जो है स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यूनिट. स्टैंडर्ड यूनिट क्या हुआ, दोज यूनिट्स जो यूनिट एक्सेप्टेबल हो to each and every places. हर जगह, चाहे तुम यहाँ रहो या तुम दूसरे जगह जाओ, किलोग्राम इज एक्सेप्टेड टू each places. तो मेजरमेंट, अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. हाउ इज मेजरमेंट डन? You must have measured the length of line segment using a scale. उसका हम लोग एक स्केल यूज करेंगे. तो जब भी बैठो तुम तो एक स्केल लेकर बैठना. नेक्स्ट टाइम, कल तुम लोगों का फिर से क्लास है. तो कल क्या है तुम लोगों का, कल है डाउट क्लियरिंग क्लास. तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू टेल मी इन डाउट क्लास. आइदर अगर तुम में डाउट नहीं होगा तो मैं आगे स्टार्ट करूँगा डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. And in this period, you must take a scale and a copy. Thank you.